ضرورتیں انشاءاللہ پوری ہوگی اور ہمیں 10 نیکیاں بتائیں۔ اب یہ درود ہم نے جو پڑھا اللہم سے، ہم نے بارگاہ رسالت میں نہیں بھیجا، اللہم یا اللہ، بارگاہ خداوندی میں ہم نے درود بھیجا۔ اللہم کے ساتھ جو درود پڑھا جاتا ہے یا اللہ درود بھیج، اللہ تو بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی بھیج رہے، لیکن ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں بھیجتے تھے کہ ہماری طاقت نہیں کہ ہم صحیح درود بھیج سکے آقا کی بارگاہ میں، تو ہم اللہم کے ساتھ درود بھیجتے کہ اللہ تو درود بھیج، اور جو اللہ درود بھیجے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کی بات کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم ایمان والوں کو اللہ نے درود کے ساتھ سلام پڑھنے کا حکم دیا۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا میں درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم درود کے ساتھ سلام بھی بھیجا کرو، اور ہم اگر سلام پڑھتے ہیں تو گواہی اس بات کی کہ ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں۔ کھڑے رہ کے سامنے سے نکل ویسے میں کوئی مقرر نہیں ہوں، کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی مدرسے میں نہیں گیا، جیسا آپ لوگ بیٹھے ویسا میں کبھی وہاں بیٹھا رہتا تھا اور علماء کرام کو سنتا تھا، پیر و مرشد کو دیکھتے رہتا تھا، اور ان کی نگاہ کرم ہو گئی کہ میں اس قابل ہو گیا کہ آج آپ بیٹھے اور میں بھی یہیں بیٹھا ہوں اور کچھ کہنے کی قوت طاقت ہے۔ ایک بڑی شکایت لے کے میں آیا ہوں کہ ہم بہت بڑے گناہ گار لوگ، اپنے اپنے غریبان میں جھانکو اور سوچو کہ ہم پیر و مرشد کا ہاتھ پکڑ کے کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، جنت پر، دوجت پر، سب قبول کیے ہم نے احکام اللہ تیرے، لیکن واقعی میں ہم ایک کام پورا کرتے ہیں؟ ہم نماز کے پابند ہیں؟ کیا جواب دیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو؟ جھوٹا وعدہ اللہ سے، پیر سے مرید بنتے ہیں، دامن پکڑ کے یہی بولتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پہ، ہم ایمان لائے رسول پہ، جنت پہ، دوجت پہ، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، لیکن ہم بے نمازی ہیں۔ ہم کتنے بڑے جھوٹے انسان ہیں، اللہ سے بھی جھوٹ، اپنے پیر و مرشد سے بھی جھوٹ۔ اللہ ہدایت دے، جو نماز پڑھتے ان کی نمازوں میں اللہ خوشو عطا کرے۔ آمین آمین۔ ان بزرگان کرام کا نام ایسے ہی اللہ روشن نہیں کرتا۔ اسلم شاہ صاحب کی نسبت ایسی ہے، 24ویں شریف میں آپ لوگ آتے دیکھتے تھے کہ آپ حیاتی میں بیٹھتا تھا، حضرت کے سامنے، گادی کے سامنے میں بیٹھتا تھا، اور جیسا سلیم شاہ صاحب میرے بازو میں بیٹھتے، اسلم شاہ صاحب میرے بازو میں بیٹھتے تھے، اور قسم کھا کے جب بھی 24ویں ہوتی ہے خیال و تصور میں اسلم شاہ صاحب ہوتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بالکل میرے پڑوس میں بیٹھے ہوئے، بڑی مشکل سے میں کہیں نکلتا ہوں، یہ الحمدللہ ان کی محبت ہے کہ آج تیسری بار میں یہاں آ گیا، سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ زندگی رہی آپ کی دعاؤں سے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی محبت کی خاطر، اسلم شاہ صاحب کی چاہت کی خاطر میں انشاءاللہ آتے سال بھی دوبارہ آپ کے آؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے کو تو بہت باتیں تھی، لیکن لوگ دھکے سے لگے، ڈاکٹروں نے اتنا ٹائم لے لیے، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 ہو گئے، لیکن نعت کا سننا بھی عبادت ہے، حمد کا سننا بھی عبادت، منقبت کا سننا بھی عبادت۔ آج یہ بزرگوں کا نام اتنا روشن کیوں؟ ہمیں ہمارے باپ دادا دوسری تیسری پیڑھی نہیں معلوم، ہم ہمارے سجرے میں ہمارے پیروں میں سچا کتنا سجرا پڑ لیتے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان کے ناموں کو روشن رکھتا ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہم ان کے دربار میں آئے یا نہ آئے، جو آنے والوں کو یہ خود کھینچ کے بلا لیتے ہیں۔ بے شک۔ ہم خود غرض لوگ ہیں نا، ہمیں آتے تو کچھ غرض لے کے آتے، کہ درگاہ میں جائیں گے، ان کے دربار میں دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ جب اللہ کے ذکر کی محفل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب ہم اللہ کا ذکر کہیں بھی بیٹھ کے کر لیتے، مسجدوں میں کر لیتے، درگاہوں پہ کر لیتے، گھروں میں کر لیتے، اب اللہ ہمارا ذکر کہاں کرتا ہے؟ تو اللہ فرشتوں کی محفل میں ذکر کرتا ہے سبحان اللہ۔ کہ ہم گناہ گار جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں ہمارا ذکر کرتا ہے، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمت کے فرشتے دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، اور جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس محفل پہ آ جاتے ہیں۔ جیسا ہم پرندوں کو دانا ڈالتے ہیں، 1 2 4 آتے ہیں، لیکن بعد میں
दाने को पूरा ढाक देते फरिश्ते। जितनी देर अल्लाह का जिक्र होता है वो फरिश्ते हमारी महफिल में रहते और हमको अपने परों से, अपनी रहमतों के परों से ढाक लेते। और जब महफिल का इख्तिताम होता है तो बारगाह इलाही में जाते, अल्लाह करीम सब कुछ जानने के बाद फरिश्तों से सवाल करते, ये फरिश्तों तुम कहां से आ रहे हो? फरिश्ते फरमाते, या अल्लाह तेरे एक महबूब की बारगाह में इंशाअल्लाह, या जो महफिल के फरिश्ते बारगाह इलाही में जाके फरमा दे कि तेरे एक महबूब की बारगाह में उनके चाहने वाले बैठ के तेरा जिक्र कर रहे थे, हमारा जिक्र वहां हो जाए तो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों सवाल। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो क्या मांग रहे थे? या अल्लाह वो अपने गुनाहों की तौबा भी कर रहे थे, तेरी तारीफ भी कर रहे थे, तेरे महबूब पे दरूद भी भेज रहे थे, दोजख से नजात और जन्नत फिरदौस मांग रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है जाओ, जो कुछ उन्होंने मांगा मेरे जिक्र के सदके मैंने वो अता कर दिया। सुभान अल्लाह। अब फरिश्ते फरमाते हैं अल्लाह महफिल हो गई, महफिल खत्म हो गई, दुआएं भी हो गई, आखिर में एक बंदा आके वहां बैठा था, उसके बारे में क्या हुक्म? रब तबारक व तआला फरमाता है कि नेक लोगों की सोहबत के सदके जो उनको दिया उसको भी अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हमको मिला जिक्र के जरिए। एक शख्स अभी अभी अगर महफिल में आ रहा है, उसने ना जिक्र किया ना दरूद पढ़ा, सिर्फ नेक लोगों की सोहबत में आके बैठ गया, तो उसको भी अल्लाह ताला वही अता फरमाता है जो हमको अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। आज मेरे दोस्तों ने मैंने बहुत अच्छे कुछ जोक सुनाया, हंस लो यार, बहुत सीरियस हो जाते जन्नत औजत की बात पे। मैं बोला पहला लोग बैठते थे, लोगों की गिबत करते, औरतें बैठती थी बहुत जोर जोर से बातें करती थी, वाह रे वाह मोबाइल तेरा जमाना। चार दोस्त बैठते हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, बस वो मोबाइल में लगे रहते। बच गए ना, गिबत बुराई से बच गए ना। वो चार बैठते तो गिबत करते, बुराई करते, है ना, तब वो बुराई से बच गए ना। मोबाइल हमको कितना अच्छे काम पे लगा दिया। चार जन बैठती, देखता चारों के हाथ में मोबाइल। चार औरतें बैठती, पहला इतना चिल्लाती थी, पड़ोसन की कहानी, माँ की कहानी, सास की कहानी, बहू की कहानी, ननद की कहानी, आज वो खामोश हो गई। मोबाइल, वाह मोबाइल, तुमने हमारी औरतों को भी सुधार दिया। सुभान अल्लाह। हंसी मजाक थोड़ा सीरियस हो जाओ, रात दिन जिक्र करके लोग थक जाते। अभी आज मगरिब की नमाज हमने जमात से पढ़ी, हमारे सूफी मौलाना ने दूसरी रकात में जो आयत पढ़ी, दूसरी रकात में सूरह फजर की आखिरी जो आयत पढ़ी, सुनने दिल खुश हो जाएगा। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतन मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। यही पढ़े थे दूसरी रकात में मगरिब में सूरह फजर की 4 आयत। इसके मायने क्या है? या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, है नफ्स इत्मीनान वाली निर्फ, मुतमईन हो जा। इला रब्बिका रादियतन मर्दिया, अल्लाह तुझसे राजी हो गया। सुभान अल्लाह। इत्मीनान वाले निर्फ, तू अल्लाह तुझसे राजी हो गया। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, तो हाँ और नेक लोगों के साथ जन्नत में चले जाओ। सुभान अल्लाह। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, ये ना मैं बोलता हूँ नहीं मौलाना बोले, अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि इत्मीनान वाली नफ्स, अल्लाह तुझसे राजी हो गया और नेक लोगों के साथ जन्नत में चला जाए। सुभान अल्लाह। तो नेक लोगों की सोहबत का वादा तो अल्लाह खुद देता है कि इनके साथ बैठो तो आओ, इनके साथ जाओ जन्नत में। सुभान अल्लाह। सुभान इंशाअल्लाह हम हमारे पीर मुर्शिद के दामन से, गौस पाक का दामन पकड़ के, ख्वाजा साहब का दामन पकड़ के, असलम साहब का दामन पकड़ के जाने तेरा वादा है। बेशक। फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, नेक लोगों के साथ आ और जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये कुरान शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने जब ईमान वालों को कुछ फरमाया तो हमेशा कुछ नेक काम करने की चाहिए। मोमिनों को फरमाया तो कुछ अलग फरमाया, इंसानों को फरमाया तो अलग अलग फरमाया। कुरान शरीफ में अलग अलग आयतें जब आप सुनते पढ़ते, थोड़ा थोड़ा मायने से भी पढ़ो। मैं भी सिर्फ एक ही ताकीद करता हूँ, हमने अल्लाह के फरमान को सुनना है, मानना है। हम नमाज की ताकीद करो, पूरी पूरी नमाज की कोशिश करो, इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। दोनों जहां हमको बनाना है। मौत का कोई भरोसा नहीं, एक सांस के बाद दूसरी आएगी या नहीं आएगी। आज पिछले साल हमारे बीच में बहुत से लोग थे, आज कई लोगों के लिए हमने दुआएं की, क्या वो हमारे बीच में शामिल होगी। इसकी कोई गारंटी नहीं कि आते साल हम होंगे या नहीं होंगे। अगर अल्लाह ने तौफीक दिया है
तो थोड़ी बहुत इबादत कर लो। हम 2 घंटा बैठ के नाच सुन सकते हैं, 2 घंटा बैठ के जिक्र कर सकते हैं। नमाज में वक्त कितना लगता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फजर की 2 सुन्नत दुनिया की हर शय से मुझे ज्यादा महबूब है। फर्ज तो छोड़ दो, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फजर की 2 सुन्नत दुनिया की सारी जितनी भी चीजें ना उन सबसे ज्यादा मुझको महबूब है। अगर एक 2 सुन्नत फजर में उठ के हम पढ़ ले, अल्लाह ताला फरमाता है रोजी के फरिश्ते तुम्हारे दरवाजे पे आते हैं, तुम्हारे दरवाजे बंद है, फिर तुम दुनिया की परेशानी में मुब्तला हो, कारोबार में चल रहा है, साथ साथ कुछ दुआ करो। अरे अपनी दुआ खुद मांग लो इंशाअल्लाह। साथ साथ तक आना नहीं पड़ेगा, बल्कि साथ साथ जैसे भी आप तक आएंगे कि भाई आज तो हमारे लिए भी दुआ कर दे इंशाअल्लाह। दुआ गिव एंड टेक का जमाना है ना, सब हम दे देंगे तो आप लोग क्या हमको देंगे? कम से कम थोड़ी बहुत दुआ हम लोग को भी दो कि इतना दूर से हम आए, अल्लाह हमारा सफर भी आसान करे। हम जिस मकसद के लिए अल्लाह उसमें कामयाबी दिया। हमने आपको तो नसीहत की, अगर एक आदमी भी अमल करेगा ना कसम से हमारे लिए जिंदगी भर सवाब जारिया बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आदमी, ये हमारे लिए मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने मेरे पीरो मुर्शद की अगर कोई बात कही तो उनके लिए भी सवाब जारिया बन रहा है। आज यहाँ कुछ कह रहा हूँ मैं उनको भेजू या नहीं भेजू, उनको सवाब जा रहा है, हमारे वालिदैन को सवाब जा रहा है। आज जो 40 साल क्रॉस कर लिए ना, उनसे पूछो वो अपने माँ बाप की कितनी इज्जत करते थे। वालिदैन की आज 40 साल के बाद जो आया है पीरियड 50-60 साल का, वो अपने वालिदैन की कितनी इज्जत करते थे। और 40 साल के नीचे वालों का पीरियड देखो क्या जो अपने वालिदैन की कितनी इज्जत। छोटे मंगूटा छापते, जाहिल थे, लेकिन खौफ था वालिदैन का कि हमारे वालिदैन ने जिंदगी भर हमारे लिए मेहनत की, हमको कुछ बनाया। एक जगह मैंने पढ़ा था, एक पढ़ा लिखा इंसान जब माँ बाप उसको पढ़ा लिखा के बड़ा कर देते ना, तो माँ बाप बूढ़े हो जाते ना तो उससे बात करने को डरते। लेकिन एक बच्चा जब दीनदार हो जाता है, कुरान पढ़ लेता है, नमाजी हो जाता है, तो बच्चा माँ बाप से बात करने डरता है, खौफ खाता है कि मेरे वालिदैन हैं। अल्लाह ताला कुरान शरीफ में खुद फरमाता है कि अपने माँ बाप के लिए खुसूसन ये दुआ याद कर लो मेरे भाई सब, जिनके हयात है उनके लिए भी है, जिनके दुनिया से रुखसत हो गए उनके लिए। अल्लाहुम्मा पढ़ लो इस बार, रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये अल्लाह तो मेरे माँ बाप से रहम फरमा जैसा उन्होंने मेरे को बचपन में पाला। बचपन का पालना बहुत मुश्किल भी होता है। देखो आज ये बच्चा किधर उनको सुनने नहीं देगा, खींचेगा, आप पाल रहे हो ना इनको। हमारी माएँ पेशाब कर दो, बिस्तर गंदा कर दो, वो खुद गिले पे सो जाती थी, हमको सोते पे रात रात भर बच्चे जागने देते थे। तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में दुआ हमको सिखा दिया कि अपने माँ बाप के लिए छोटी सी दुआ हमेशा मांगो। अल्लाहुम्मा एक बार और पढ़ लो, अल्लाहुम्मा रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह हमारे वालिदैन को, सबके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। मैं समझता हूँ अगर मैं बोलने पे हूँ तो सुबह तक बोल सकता हूँ, लेकिन चेहरा देख रहा हूँ बहुत लोग थके हुए, दूर भी जाना है। अगर साथ इजाजत है तो हमें साथ करें। अल्लाह ताला से आप लोग मेरे हक में भी दुआ कीजिए, मुझे तंदुरुस्ती मिले। और जिन लोगों ने मुझसे दुआ की दरख्वास्त की है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, अल्लाह ताला उनकी भी आदतें पूरी फरमाए। और आप लोगों का यहाँ आना अल्लाह ताला इसका बेहतरीन नजर अता फरमाए। हमारे पीरो मुर्शद के सबके हम इस काबिल हो गए कि माइक पकड़ के आपके सामने कुछ बोल सकते हैं, बोलने की हिम्मत रखते हैं। और कुरान अभी सब दिल पे लेके जाओ इंशाअल्लाह कि हम नमाजी बनेंगे। हम नमाज आपका अपना फायदा है, वरना हम झूठे हैं कि अल्लाह ईमान लाते हैं मगर ईमान वाले नहीं बनते हैं। हमारा ईमान बहुत अच्छा है। जब तो हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जब तुम दीन से दूर हो जाओगे तो तुम पर दूसरी कौमें मसलत कर दी जाएगी। आज हम दीन से दूर है, इसलिए तो हमारे साथ ये हालात हो रहे। जहाँ देखो क्या हाल हो रहे हमारे मुसलमानों के। अगर हम दीनदार हो जाएंगे, एक यहूदी का कॉल पड़ा था कि जिस दिन मुसलमान जुम्मा की नमाज में जितने होते, जिस दिन फजर की नमाज में उतने आ जाएंगे ना, तो सारी दुनिया के लोग उनसे डरेंगे। लेकिन हम कब आएंगे? हम तो जुम्मा में भी 2 रकात पढ़ के बाद। देखो रोजी रिज़्क़ का देने वाला अल्लाह, उसने लिखा है 15 शाबानुल मुअज्जम को, हम तो जब सुनिए ना 6 रकात नमाज पढ़ते ना,
2 रकात उम्र दराज दिन खैर की, 2 रकात रिजत की बरकत की। और हमको पता है कि अल्लाह ताला 15 साबान को साल भर की बंदों को रोजी दे दे, फरिश्तों को बाद लिखा दे कि इतने लोग मरेंगे, इतने पैदा होंगे और ये बंदे की इतनी रोटी। अब फरिश्ते अमानदार है, अमानतदार है, हमारे से लोग नहीं है टोपी बात कर जमा लाए तो पैसा हो चाहे जैसा हो, समझे। तो आपको अमानत अपने रख के संभाल के रखे। और जब वो अल्लाह ताला का हुक्म होता है, किसी को 1 दिन में दे देता है, किसी को थोड़ा थोड़ा करके महीनों में मिलता है, किसको साल भर में मिलता है। तो ये चीज बेफिक्र हो जाओ रोजी के बारे में। हमारे को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा, अल्लाह ताला को फरमाता है इंसान और जिन्नात को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। अब जिन्नात तो इबादत कर रहे और हम इंसान कहाँ हैं? अपने आप पे सोचो। मैं इतना ही करता हूँ, इतनी दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको देख तौफीक दे। हम नमाजी बनेंगे, हमारी औलाद नमाजी बनेगी। अगर हम बेनमाजी रहेंगे, हम बच्चे को बोल नहीं सकते। आज मोबाइल तुम देख के बैठे हो तो बच्चे के हाथ में तो मोबाइल छीनते हो तो चिल्लाता डैडी को नीचे देखते हो, आपको आके दे। आज मैं देखता हूँ गांव खेड़े में जाओ तो कोई चश्मे की दुकान नहीं है। 70 साल 80 साल की औरतें भी बाहर से बड़ों देख रही हैं। और शहर में घूमो तो 5-5 साल 8-8 साल के बच्चों को बड़े बड़े कांच के चश्मे लग रहे। बच्चा सताता है, उठा के मोबाइल देखिए, कार्टून लगा दिए, बच्चा 1 घंटा खेल रहा है तो उसकी आंखों को क्या नुकसान हो रहा है। तो आज 5 साल 8 साल की उम्र में उसको चश्मा लग रहा है, तो हमारी उम्र में आएगा तो क्या होगा? फिर तो उसको लाठी देना पड़ेगा। अल्लाह नहीं करे सबकी आंखें अल्लाह सलामत रखे। आमीन। तो अपने मोबाइल से भी लोगों को दूर रखो। ये सब यहूदियों की चाल है। मैं एक बात और कर दूं यहूदियों के बारे में। जब यहूदियों ने इस्लाम को मिटाने की सोची तो इस्लाम बढ़ जाएगा तो हमारा तो कोई ठिकाना नहीं रहेगा, तो उन्होंने पहला कुरान शरीफ जला दिए और उसके बाद कुरान रहेगा नहीं तो क्या करेंगे? फिर देखे अरे इनके पास तो कुरान हाफिज है हजारों, तो कहीं हजारों कुरान हाफिज को मार दिया। फिर भी ईमान अपनी जगह जितना दबाते स्प्रिंग की तरह ऊपर जाता है, उतने ईमान वाले बढ़ते गए। तो फिर उनको सलाह दी गई कि पाकी आधा ईमान है, तो इनको ऐसा करो पानी की सहूलत कम कर दो ताकि जुमा जुमा नहाने लग जाए। पाकी की सहूलत कम कर दो, नापाकी में लेके आओ। उनको नई नई ईजाद करके चीजें दो ताकि मजहबी काम से दूर होके उसमें गफलत में आ जाए। और हमको दीन से दूर करने में सबसे बड़ा काम यहूदियों का है। आज जितने मोबाइल हम वापर रहे, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है? किसकी कंपनी आएगी? उनकी कंपनियाँ। इंटरनेट हम इतना वापर रहे, पैसा किसको जा रहा है? उनको जा रहा है। हम अपनी मेहनत की कमाए, हमारे मजहब को नुकसान पहुँचाने वाले को बचाए। आज इसराइल की वजह से फलस्तीन में इतनी बर्बादी हुई। मैं आज भी देखता हूँ बच्चे लोग मैकडोनल्ड में जाकर खाते हैं, उसमें सुअर की चर्बी है, KFC में भी है। उसकी हलाल सर्टिफिकेट लास्ट वीक में हटा दी गई। पहले हलाल फूड लिखते थे लोग, अब हलाल की सर्टिफिकेट हटा दी गई। तो बच्चों को ये भी नसीहत करो, अपने घर में खिलाओ। बटाटा वड़ा मशहूर है ना इंडियन अपना महाराष्ट्र का, वड़ा पाव खिलाओ ना, समोसा खिलाओ। साइको मैकडोनल्ड के पिज़्ज़ा और बर्गर के पीछे जाते हो। अल्लाह करीम मेरा कहने में कुछ गलतियाँ होगी, कामयाब तो माफ़ करे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अल्लाह करीम असलम शाह साहब के सबके अन्याय, अल्लाह उनके रूहानी फैज़ हम सबको अता फरमाए, पूरे मसद का रूहानी फैज़ अता फरमाए। आइए दुआ कर ले।